Hello students, good morning. How are you all? Fine? Yes. So today we are going to study subject ES of class 3, chapter number 17, Journey of a Letter. Children, you already know how the letter travels from one place to the other. First we write a letter. Children, I told you to write a letter. Have you written a letter to your friend or anybody else in your family? If not, try to write a letter and then try to do all the process of letter. Okay, so you come to know where is post office, how it looks, how the post box is there. Okay, so if you haven't write a letter any time, then try to write a letter once. Okay, then you can write a letter to your friend also or anybody else in your family also. So children, you learn, जब हम लेटर लिखते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ, एनवेलप में रखते हैं. यस, आफ्टर पुटिंग इन एन एनवेलप वी राइट द एड्रेस. यस और नो? सो चिल्ड्रन, एड्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेटर. If you not write address, then letter will not reach to its destination. Yes or no? Okay. So after writing a letter, you put it in an envelope, and then what we do? We write the address on it. Yes. After writing an address, we put it in post box. Which color of the post box is? It is of red color. Yes. Then after putting in a red color post box, postman carries a letter from there. Then postman transfer it to the post office to the postmaster. Yes or no? Then postmaster stamp it according to the different areas. है ना? पोस्टमास्टर जो है उसको एरिया वाइज सेपरेट कर देता है और फिर उसको एरिया वाइज स्टैंप लगाए जाते हैं. फिर वो जो लेटर्स हैं वो पोस्टल वैन में रखे जाते हैं. और कहाँ पे रखे जाते हैं? रेलवे स्टेशन लेके जाया जाता है. रेलवे स्टेशन है या फिर इफ इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एयरवेज देन इट गोज टू द एयरप्लेन. यस और नो? सो देन लेटर जो है वो जिस एरिया जाने वाले हैं उसको उस ट्रेन में रखा जाता है. यू नो दैट ट्रेन हैव डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. पैसेंजर कंपार्टमेंट के अलावा ट्रेन में एक और कंपार्टमेंट होता है जो कि इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है, गुड्स के लिए, लेटर्स के लिए. तो वो एक अलग कंपार्टमेंट होता है ट्रेन में. यस और नो? यू हैव लर्न. सो वहाँ से जो है लेटर उस जगह की पोस्ट ऑफिस पे पहुँचाया जाता है. वहाँ से वो पोस्टमैन, वहाँ का जो पोस्टमैन होता है वो उसको एरियाज में पहुँचाता है. यस. सो अब हम क्या पढ़ेंगे? चूज द करेक्ट आंसर्स. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर ईवीएस वर्कबुक. See here on page number 135. See, I have written here. Choose the correct answers. See what is the first number. What type of institution is the post office? So children, you know post office is. See, open your workbook on page number 135. See here. Which is the first option? It is private institution, public institution, owned institution or NGO institution. So children, you know that post office can be used by anybody in the world. Okay, कोई भी पर्सन उसको यूज कर सकता है. तो वो कैसा इंस्टीट्यूशन हुआ? पब्लिक इंस्टीट्यूशन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन. ओके, और यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? ऑप्शन बी. अंडरस्टूड? देन वेयर इज द लेटर फर्स्ट पुट आफ्टर इट इज रिटन. तो हम क्या करते हैं? एनवेलप में डालने के बाद उसको पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, है ना? पता है तुमको? सो इन द पोस्टल वैन, बी ऑन द रेलवे स्टेशन, इन द पोस्ट बॉक्स एंड डी इज इन द पोस्ट ऑफिस. सो दैट इज ऑप्शन सी, है ना? सी ऑप्शन में है, इन द पोस्ट बॉक्स. सो यहाँ पे ऑप्शन सी. ओके, नाउ सी what is the color of the post box for local letters. So children, what is the color of the post box? It is of red color. तुमको पता है local letters के लिए post box का कलर क्या होता है? red. तो यहाँ पे हम लिखेंगे red. Option A. Now see what is done to the letter once it reached to the post office. post office में पहुंचने के बाद letters को क्या किया जाता है? स्टैम्प किया जाता है एरिया वाइज, है ना? उसको अलग अलग
एरिया वाइज उसका स्टैम्प लगाया जाता है. सो सी ऑप्शन, it is signed, it is stamped, it is tied, it is put in a box. So first it is stamped, है ना. तो पहले ऑप्शन क्या आएगा? B, it is stamped. So that is option B. Clear? Now see, which is the means communication, which is the means of communication at present for view and tag of news. हम यू नो दैट हम पहले क्या यूज करते थे? पहले पिजन्स यूज करते थे लेटर ट्रांसफर करने के लिए, है ना. पर वो लेटर्स जो है सब एरिया में नहीं पहुंच पाते थे. पिजन्स को ट्रेन किया जाता था पहले के जमाने में. तो अब वो लोग क्या करते हैं? अब हम क्या यूज करते हैं? हम लेटर लिखते हैं और वो लेटर ट्रांसफर होते हैं. पर अभी आज की लाइफ में हम क्या लिखते हैं? प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? हम डायरेक्ट फोन करके बात कर लेते हैं जिससे भी हमें बात करनी है. हम लेटर्स नहीं लिखते हैं, है ना. तो हमारा प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सेलफोन एंड टेलीफोन, मोबाइल फोन. यस, ये सब हम यूज करते हैं. हम लेटर्स नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली फोन करके बात कर लेते हैं. सो दैट इज क्विक वे ऑफ कम्युनिकेशन. यस, एंड ऑल्सो प्रेजेंट टाइम्स. नाउ सी, लेटर्स, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स एंड एनवेलप. सो दैट इज ऑप्शन सी, टेलीफोन्स. हम डायरेक्टली फोन करके बात कर लेते हैं, लेटर नहीं लिखते. Which mode of communication is such that it is seen constantly with a person? So कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो पर्सन के साथ हमेशा रहता है? मीन्स पर्सन अगर कहीं जाएगा तो भी वो उसको कैरी कर सकता है. सो दैट इज मोबाइल फोन्स और सेल फोन्स. नाउ सी, टेलीग्राम, लेटर, टेलीफोन एंड सेल फोन. सो दैट इज ऑप्शन डी, सेल फोन. सो हियर यू विल राइट सेल फोन. That is an option D. Clear up till here, children? Now see, next is fill in the blanks. A dash comes to deliver letter to our house. हमें जहाँ पे लेटर देना है, अगर वो उस एरिया में पहुँच गए तो वो देने कौन जाएगा? If you have to send a letter to Surat, so after all the process, when letter reaches to the Surat post office, then from that, who will carry the letter to the person whom you have written? It is a postman. Yes or no? वहाँ से वो सूरत का जो पोस्टमैन है वो लेके जाएगा और वो हमारी दी हुई एड्रेस पे उसको डिलीवर करेगा. सो कौन डिलीवर करता है लेटर्स? पोस्टमैन. सो यहाँ पे नंबर 1 में क्या आएगा? पोस्टमैन. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पोस्टमैन? POSTMAN, postman. Now see, a person who manages a post office is known as dash. So children, जो पर्सन पोस्ट ऑफिस को, पूरी पोस्ट ऑफिस को मैनेज करता है, लेटर्स को स्टैम्प करता है, एरिया वाइज सेपरेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेल मी. ही इज कॉल्ड एज अ पोस्ट मास्टर. सो हियर नंबर 2, पोस्ट मास्टर. Yes or no, children? Now see number 3. After writing everything in a letter, if the address is not written, then the letter does not reach its destination. So क्या हम नहीं लिखेंगे तो लेटर नहीं पहुंचेगा? Here the question is, आप क्या लेटर में नहीं लिखोगे तो आपका लेटर आपको जिसको देना है उसको नहीं पहुंचेगा. I have told you, हम एनवेलप पे क्या लिखते हैं? एड्रेस. अगर आप एड्रेस नहीं लिखोगे तो पोस्टमैन को पता कैसे चलेगा इस लेटर को कहाँ पहुंचाना है? So address is a very important part of a letter. Yes. So here you will write address. Understood? Now see number 4. In the present age, and dash is used to send a written messages instantly. See children, जब हम फोन करते हैं तो it is called a oral means of communication. आप बात करते हो उनसे, आप कुछ लिखते नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? oral means of communication. पर यहाँ पे हमें क्या दिया है कि प्रेजेंट टाइम्स में, मतलब अभी के टाइम में हम क्या यूज करेंगे रिटर्न मैसेजेस के लिए लेटर के अलावा? तो हम क्या यूज करते हैं अभी के टाइम में? हम मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं. यस और नो? सो ईमेल इज अ रिटर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. उसमें लिख के मैसेज सेंड किया जाता है. सो अगर हम लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड रिटर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम बोल के बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड oral means of communication. So written means of communication at present time is email. Yes. So here you will write email. Now see number 5.
The important tool used for the give and take of messages in the present age is dash. Present age मतलब हम अभी के टाइम में तुरंत बात करते हैं तो कैसे करते हैं? What we use to give and take messages. If we send a message to anybody, what we use? We use mobile phones. Yes? आप लोग भी सब मोबाइल फोन्स यूज करते हो, फोन पे बात करते हो अपने रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से. आपको कुछ भी काम होता है आप डायरेक्टली फोन लगा लेते हो, है ना? सो हम क्या यूज करते हैं? मोबाइल. सो इट इज कॉल्ड अ प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ सी, अ डैश इज डन टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. अगर हमें मनी सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज मनी order. So here number 6 you will write money order. Okay children, clear up till here? Now see, next page, page number 136. See here, a post office does the work of delivering our letters from one place to the other. So post office ये काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर पहुंचाता है. Yes, so here you will put right mark. Now see, to save small amounts in a saving account, a money order form must be filled. क्या है? हमें अमाउंट सेव करके रखते हैं, हमें पैसे किसी को भेजने नहीं है कहीं पे भी, हमें उसको सेव करके रखना है सेविंग अकाउंट में. तो हमें मनी ऑर्डर का फॉर्म फिल करने की जरूरत है? नहीं है. तो हियर यू विल पुट रॉन्ग मार्क. मनी ऑर्डर क्या होता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड अ मनी ऑर्डर. यस, so that is wrong answer. A postman work as a service providing professional in our village or a city. So ये काम पोस्टमैन करता है, वो सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल है. हाँ, वो हमें सर्विस देता है ना, हमारे लेटर्स जो है एक जगह से लेके दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर करता है. So it is a one type of service. So it is called a service providing professional. So it is right. Now we can buy a telephone or a cell phone from a post office. Yes or no? No, we cannot buy. So here wrong. All the letters that reach a post office are collected and put in a postal van to be taken from one place to the another. जब पोस्ट ऑफिस पे लेटर पहुंच जाते हैं तो क्या करते हैं? वहां से उसको पोस्टल वैन में कैरी किया जाता है. यस और नो? सो पोस्टल वैन में कैरी किया जाता है. क्यों? एक जगह से उसको दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए. तो इट इज राइट. ओके. So here when all the letters reach to the post office are collected, put in a postal van to be taken from one place to the other. So it is a right. Now cell phone is a handy tool of news media. Yes, news media का handy tool है, हम हाथ में ले सकते हैं उसको, कहीं भी लेके जा सकते हैं, है ना? तो it is called as a handy tool. Okay, news media का वो handy tool है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं. Now match the columns. Number 1 is पोस्ट ऑफिस. सो पोस्ट ऑफिस के लिए सी चिल्ड्रन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेंडिंग मनी फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर, मीडियम फॉर सेंडिंग एंड रिटर्न मैसेजेस, कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स, गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन और चैटिंग. सो पोस्ट ऑफिस क्या करता है? लेटर कलेक्ट करता है ना. पोस्ट बॉक्स में से सारे लेटर उठा के कहाँ रखे जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में. सो हियर इन नंबर 1 यू विल राइट ऑप्शन सी. ओके. नाउ सी नंबर 2. टेलीफोन. टेलीफोन किस लिए यूज होता है? चैटिंग के लिए. चैटिंग मतलब बात करना, मैसेजेस करना, है ना? सो हियर इट इज इन ऑप्शन ई. नाउ सी नंबर 3. मनी ऑर्डर. मनी ऑर्डर किस लिए यूज होता है? पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए. सो ऑप्शन ए, सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. सो हियर ऑप्शन ए. नाउ सी नंबर 4. पोस्ट कार्ड. सो पोस्ट कार्ड किस लिए यूज होता है? हम मैसेजेस लिखते हैं, है ना? पूरा लेटर लिखते हैं पोस्ट कार्ड में एंड देन हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं. सो हियर मीडियम फॉर सेंडिंग अ रिटर्न मैसेजेस. सो हियर नंबर बी. सो चिल्ड्रन क्लियर अप टिल हियर? सो हियर वी आर कंप्लीटिंग. चूज द करेक्ट, fill in the blanks, right or wrong and match the columns. See children, your project is you have to write a letter. Okay, you have to write one letter and put it in an envelope and you have to write address on it. Okay children, so we will meet in the next video. Till then, bye bye. Thank you.